Welcome, and let's continue our math first whole chapter, that is ratio and proportion in practice set 4.1 and question number 12. Here question is express the following percentage as ratio in the reduced form. First example is 75 is to 100. So student, here you know if 100 is in denominator means numerator is percent, means यदि डिनोमिनेटर में 100 हो तो ऊपर जो भी नंबर होगा वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका रेड्यूस फॉर्म लिखना है, सिंपलीफाई। तो लेट्स सी हाउ टू राइट द रेड्यूस फॉर्म। तो दिस मींस 75 अपॉन 100। देन फाइंड द टेबल। एक ऐसा आपको टेबल ढूंढना है जो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हो। कोई एक ही टेबल से दोनों डिवाइड होने चाहिए ऐसा नंबर। तो 25 तीजा एंड 25 फोरजा, so it is 3/4. This means the reduced form of this percentage means 75%. Is 75 upon 100 means it is 75%. So this is equal to 3:4. Similarly, see here 44 upon 100. Again, write out a table or number which divide both numerator as well as denominator. So if you don't know the larger number, that time start from the smaller number like 2, 4. So here see this one. Both numerator and denominator both are divided by 4 or 2. So larger number is 2. So first we try to divide by 4. Means this 4 1 ja, again 4 1 ja. Here when you divide 100 by 4, that time it is 4 2 ja 8 and this 5 ja. Again try to divide this 11 and 25. और आपको क्या करना है, 11 और 25 को ट्राई करना है कि किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या। होता है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो स्टॉप करके जो आंसर आया वो लिखना है। तो आपको ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 11 भी आता हो टेबल में और 25 भी। तो लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 25 मींस 11 is to 25. Similarly, see this third one. This is in percent sign, means 6.25% means upon 100. And when you multiply both numerator and denominator by 100 to remove this decimal sign, that time we multiply both 625 and this 100 into 100 into 100. That time what happened? So this value is this 6.25 into 100, that is 625 upon 140 means it is 10,000. मीन्स आपको पहले क्या करना है, ये डेसिमल हटाना है। तो सिमिलरली क्या है, अगर डेसिमल के बाद ये डिजिट है उतने जीरो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। तो 1 2 डिजिट है तो 100 के बाद 2 0, या फिर इस तरह से हम लिखते मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100 टू रिमूव दिस डेसिमल साइन। तो ये क्या होगा, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 625 और आके यहाँ पे डेसिमल और ये 10,000। तो ये डेसिमल के बाद जीरो ना लिखे हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अब टेबल फाइंड आउट करना है जो 625 और इस दोनों को डिवाइड करता हो। तो लार्जर टेबल आप ढूंढ सकते हो, लार्जेस्ट या तो 5 से डिवाइड करके आप करते जाना है। और फिर जैसे मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे तो ये 25 का स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय 25 से मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया। और इससे भी अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 25 हो गया 100 and this. Again, if you know this table or divide this 400 by 25 और divide by 5। अगर आपको नहीं आता बड़ा नंबर को, आप 5 से देख रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 5 जा 25 and 5 8 जा and this।
अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 5, फिर से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 1 जा, देन हियर इट इज 5 1 जा, दैट इज 5 and 6 जा 30 means 1/16. So here answer is 1/16 means 1:60. Then see this fourth one, it is 52:100 means 52/100. Again when you divide this number by 4, so 4 1 ja and 4 3 ja means 52 divided by 4, 4 1 जा 4 and 4 3 जा। तो अगर आपको इस तरह कट नहीं करना आ रहा तो आप रफ में डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। इस 100 को भी 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 4 जा 8 and 5 जा, so here it is 13/25 means 13:25. Next example, that is 0.64%. So first we write in fraction form, means it is 0.64/100. Then student, what we can do for remove this decimal sign? अब इस डेसिमल साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा? तो अगेन we multiply numerator and denominator by 100. See here, after decimal there are 2 digits, therefore we multiply by 100 means numerator and denominator, or write directly 20 in denominator. So see, 0.64 into 100 and this is 100 into 100. So this is 64/10,000, and here you know, here it is 64 and 20, and when you put decimal, so it is 64.00 means 64, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और ये आगे जो 0 है 0.64 मीन्स ये भी हट के क्या हो गया, वो 64 हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता है। लार्जेस्ट नंबर नहीं मिला तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर 2 4 से भी ट्राई कर सकते हैं। यही होगा कि आपको बहुत बार उसे सिंप्लीफाई करना होगा, कट करना होगा। जैसे अगर मैंने 4 से डिवाइड किया इसे, तो इट इज 4 1 जा, एंड देन 4 6 जा 24। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हो, 4 1 जा 4, then it is 4 6 जा 24, and again here 2 8 5 ja and this. Again try to divide by 4, then it is 4 4 ja 4 4 ja 16, and here it is 4 6 ja 24, then 4 2 ja 8 and 5 ja means it is 4/625। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, 4:625। ये आप रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 6 डिवाइडेड बाय 4, जैसे मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, then 4 2 जा 8 and 5 जा 20। तो अगर सिंप्लीफाई नहीं करने आ रहा है तो आप इस तरह से रफ वर्क में डिवाइड करके भी आप ये लिख सकते हो। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया होता तो इससे बहुत बार कट करना होता है, तो मैंने 4 से किया, डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते थे। तो ये रफ वर्क करके आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। देन सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? मीन्स किसी एक छोटे से घर को बनाने के लिए 3 पर्सन कितने दिन में बना रहे हैं, 8 डेज में। 3 लोग मिलके किसी छोटे घर को 8 दिन में पूरा कर रहे, और वही घर बनाने के लिए आपको वो कितने दिन में पूरा करना है, तो कितने पर्सन मीन्स कितने लोग लगेंगे।
तो सिंपली ये वेरिएशन का एग्जांपल आप 8th में कर चुके हो कि एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी बढ़ी तो उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, एक बढ़ रही होगी दूसरी कम हो रही होगी तो उसे हम लोग इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। तो ये कौन सी टाइप का एग्जांपल हुआ, जैसे यहाँ पे 3 पर्सन है 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वही वर्क हमें 6 डेज में कंप्लीट करना है तो जो पर्सन है वो ज्यादा लगेंगे, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड भी x मान लेते, लेट नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड भी x, तो ये x इंटू 6 और दूसरे इसमें क्या है 3 इंटू 8, और ये 6 इधर आया तो x इक्वल टू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस 3 बन जा एंड दिस 2 जा एंड 2 बन जा 4 जा, तो x इक्वल टू 4। तो कितने पर्सन की जरूरत होगी यहाँ पे 4, मींस अगर 6 डेज में वो वर्क कंप्लीट करना है, वो हाउस कंप्लीट करना है, तो हमें जो पर्सन जो पहले 3 पर्सन वर्क कर रहे थे वहां पे अब कितने पर्सन वर्क करने पड़ेंगे 4, तो वो इस स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल आपको देखना है, रिवाइज करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पे जो रेशियो दिए इनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मीन्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। 100 होने के लिए आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी प्रोसेस से करनी है वो आप कर सकते हो, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 100, मीन्स ऊपर जो भी नंबर होगा वो परसेंट। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया 15/25, so in denominator there is 25, then how can you convert this 25 into 100? अब 25 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो 25 4 जा, मीन्स यहाँ पे हम लोग को दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 15 4 जा 60 एंड 25 4 जा 100, मीन्स इट इज 60%। तो इस तरह से आप डिनोमिनेटर के नंबर को 100 में कन्वर्ट करके जो भी ऊपर न्यूमरेटर होगा वो परसेंट। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ये 47 और इस 2 मीन्स अपॉन 50 है, तो इस 50 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 52 जा, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 14 और ये 8 + 1 9 और नीचे 100 मीन्स 94%। Similarly here it is 7/10। अब इस 10 को 100 करने के लिए क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, so multiplying both numerator and denominator by 10, so 10 7 जा, that is 70/100 means it is 70%. Similarly see here this example, so here 546/600, so in denominator there is 600। अब इसे और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंक्रीज होगा, इसे 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। अब इस 600 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 100 आ सकता है, तो ऊपर भी और नीचे दोनों को 6 से डिवाइड कर दे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा एंड 1 जा, नई डिवीजन आ रही, तो आप इस तरह से 546 डिवाइडेड बाय 6, 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, तो ये
और इस 600 को 6 से डिवाइड किए तो 100 मीन्स 91%. But see this question number 5th. In denominator there is 16 and there is no number to multiply or divide to get 100. अब 16 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके 100 नहीं ला सकते. तो ऐसे क्वेश्चन में ला सकते हैं लेकिन डेसिमल में होंगे वो पॉइंट. सिंपली अगर देखा जाए तो ऐसे टेबल या नंबर्स नहीं मिलेंगे. तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये सभी एग्जांपल को भी हम लोग जो इस फिफ्थ के लिए जो मेथड यूज करने वाले हैं वो मेथड हम इन सभी एग्जांपल को भी यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें इजीली नंबर्स मिल रहे थे इसलिए हमने इजीली उनको क्या कर लिया 100 में कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 7/16. So we multiply both denominator and numerator by 100. दोनों को ही 100 से डिवाइड कर देना है. लेकिन इस 100 को कुछ करना नहीं, इस 100 को आपको वैसे ही रखना है और ये नंबर मल्टीप्लाई करके 16 से क्या करना है उसे डिवाइड कर देना है. तो नीचे का 100 वैसे का वैसे रहेगा और 16 से डिवाइड करने पे जो आएगा वो ऊपर लिख देना है. तो वो डेसिमल में होगा. अगर आपको डेसिमल में पता चल जाता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे ही हो जाएगा 716 इंटू 100. अब इस 700 को 16 से डिवाइड करते हैं. 16 5 जा 80 ज्यादा हो जाएगा. 16 4 जा 64. फिर यहाँ पे ये 10 - 6 10 - 4 that is 6 0. फिर ये नीचे ले लेते हैं. अब 16 3 जा क्योंकि 4 जा 64 ज्यादा है तो 16 3 जा 48. अब इधर कितना आ रहा है ये 10 - 8 2 5 - 4 1. फिर यहाँ पे डेसिमल देंगे और 0 ले लेते हैं यहाँ पे. अब फिर 16 का टेबल रीड करना है जो 120 या 120 से क्या हो कम हो. तो 16 7 जा अभी 16 7 जा चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है यहाँ पे. तो 42 एंड दिस 4 on जा 11 मीन्स 112. तो यहाँ पे 112 लेंगे हम लोग. 7 जा चल जाएगा ये क्योंकि जो 8 जा अगर लेंगे तो वो 120 से क्या होगा लार्जर हो जाएगा. तो यहाँ पे ये 10 - 2 8 ये 1 रह गया. 1 - 1 0 0 और एक 0 लेकर अगर 16 का टेबल अब पढ़ते तो 16 5 जा 80. तो यहाँ पे इस 16 से कट करके मीन्स डिवाइड करके 43.75 मीन्स 43.75 अपॉन 100 मीन्स 43.75%. तो इस तरह से ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मेथड हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. देखिए अगर नंबर नहीं आपको मिलता है तो ये 15 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 100. दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके ये 100 रहने देना है और इससे 25 बन जा एंड दिस 4 जा एंड 15 4 जा दैट इज 60 और ये नीचे का 100 आ गया 60%. ये वाली मेथड में किसी भी नंबर के लिए चलेगी. अगर नंबर आपको ढूंढना नहीं हो रहा होगा तो अगर नंबर मिल रहा है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. इसको भी हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे. देखिए 47 अपॉन 50 मीन्स मल्टीप्लाई बोथ बाय 100. अब ये 100 कट नहीं करना है तो ये 50 के लिए इसको कट कर दिया. 0 देन 5 बन जा 5 2 जा और 100 रह गया यहाँ पे. और इनका मल्टीप्लिकेशन 14 4 + 1 9 और ये 100 मीन्स 94% आ गया. वैसे ये भी आप कर सकते हैं. तो आपको जैसे भी मेथड याद रखनी है दोनों में से कोई भी मेथड आप याद रख सकते हो. See question number 6 and example is the ratio of ages of Ava and her
mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's was 27 years. Then find the present ages of Abha and her mother. So student, here ratio is given and one condition is given. See what is the ratio? Ratio is 2:5. And at the time of Abha's birth, her mother age was 27 years. What this indicate? Means it is minus. So first we write the given thing. Means here this information is important. Means the ratio of ages of Abha and her mother is 2:5. So in this type of example, first we consider a common multiple, and this 2 is for Abha and this 5 is for her mother. So when you consider x is a common multiple, that time the present age of Abha is 2x and the present age of her mother is 5x. तो स्टूडेंट इस टाइप के एग्जांपल में जो रेशियो दिया होगा तो आपको वहां पे एक कॉमन मल्टीपल कंसीडर करके जिससे मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे 2 पर्सन है आभा एंड हर मदर, तो फर्स्ट नंबर जो है वो आभा के लिए और ये जो सेकेंड नंबर वो उसके मदर के लिए। या फिर ऐसे टाइप के एग्जांपल में आपको हमेशा वैसे ही फर्स्ट और सेकेंड नंबर कंसीडर करके एक्स कॉमन मल्टीपल कंसीडर करके मल्टीप्लाई करके जो एग्जांपल में कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखने के बाद लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ आभा equal to 2x year and the present age of her mother is 5x years. Then according to एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्या कहा है कि एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ मीन्स आभा की एज जो आज प्रेजेंट है वो क्या करनी होगी, माइनस करनी होगी। तो ये कंडीशन होगा 5x माइनस आज की आभा की एज वो क्या है 2x, आज की उसके मदर की एज कितनी है 5x है। तो 5x में से ये 2x माइनस किया तो वो उस समय 27 इयर्स ओल्ड थी। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज पता करना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करके इस जगह पे उसे रखकर 2 से मल्टीप्लाई करने पे आभा की प्रेजेंट एज आ जाएगी और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी माता की। तो यहाँ पे हम लोग पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, 5x minus 2x that is 3x equal to 27. So x equal to 27 divided by 3 and therefore this 3 1 ja and this 9 ja means x equal to 9. x की वैल्यू क्या आ गई 9 and therefore the present age of Abha that is 2x means 2 into 9 means 18 years. And the present age of her mother that is 5x means 5 into value of x is 9 means it is 9 5 45 years. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। Then see this question number 7. Again here some conditions are given. First one is the present ages of Vatsala and Sarah
are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? 5:4 मीन्स यहाँ पे इससे अपोजिट एग्जाम्पल हुआ है जिसमें यहाँ पे आपको प्रेजेंट एजेस दी है और क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के बाद, हाउ मेनी आफ्टर मीन्स आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4 में कितने वर्षों के बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 होगा। तो हम उसे कॉमन मल्टीप्लाई न लेकर अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि x वर्षों के बाद उनका जो रेशियो ये होगा, तो आज अगर वो 14 और 10 इयर्स के हैं तो इसमें x क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो कंडीशन कहां से बनाना है हमें, लेट आफ्टर x ईयर the ratio of their ages will become 5:4. Then according to sum or example, आज जो वर्तशाला है वो 14 इयर्स की है और सारा 10 ईयर की है और x सालों के बाद मीन्स प्लस एक्स इक्वल टू 5.4 हो जाएगा। देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। देन डू ब्रैकेट मल्टीप्लाई, 4 इंटू 14, 4 इंटू एक्स, सिमिलरली 5 इंटू 10 एंड 5 इंटू एक्स। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट इनको तो 14 4 जा 56, अगेन 4 इंटू एक्स दैट इज 4x इक्वल टू 5 10 जा 50 और 5 इंटू एक्स दैट इज प्लस। अब x और x एक तरफ लेना है, नंबर एक तरफ करना है, मीन्स आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये 4x उधर लेना है तो आपको इनकी साइन चेंज करनी होगी, 5x को इधर लाना है तो 5x की साइन चेंज करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5x को इधर ले लेते हैं, माइनस 5x इधर आया ये 5x और ये 56 को इधर करना है ट्रांसफर, तो ये प्लस है तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज होगी। और इधर प्लस माइनस, माइनस है ग्रेटर नंबर साइन, तो ये प्लस ये माइनस है तो हम लोग माइनस करके लार्जर नंबर साइन देंगे, तो 1 नहीं लिखते इसलिए x। और इधर भी प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, तो ये भी क्या आ गया, -6 हो गया। तो दोनों साइड नेगेटिव है तो x की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। मीन्स कितने सालों के बाद उनका रेशियो 5:4 हो जाएगा, तो आफ्टर 6 इयर्स। तो यहाँ पे आंसर लिखना है, देयरफॉर आफ्टर 6 इयर्स। और जो कंडीशंस है वो लिख के कंप्लीट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आप अच्छी तरह से रीड करना है, उसमें भी जो कंडीशन दी है कॉमन मल्टीपल से कंडीशन बनानी है और खुद से इसी मेथड से सॉल्व करना है।